Which is why it's so important to know that the culture that you're familiar with, because a large part of our population lives in small towns and villages, and that is the reality of India. There are strong women there. There are women who are leading lives on their own terms. And I found that very interesting, because I just thought that we women in the urban cities are liberated, are educated, and therefore we get to do that. And slowly, with every film that I've done, I've explored a different reality. I've explored a different world. I've explored a different culture, and that's been very exciting for me, and that's been very exciting for audiences to watch, and therefore those films have done well. I think culture is not just about music and dance and festivals. Culture is all of that, and it's a way of life. And through film, we get an opportunity to really explore and expose different ways of life. Which is why it's interesting that Whistling Woods has decided to launch the Cultural Hub, so that we get exposed to different people, to their cultures, to their realities, to the possibilities, and therefore to different stories. As a student of sociology, I keep saying that, sociology taught me to appreciate the possibility of possibilities. This exists, but this also exists, and then this also exists. So, it just opens up your mind, it opens up your world, your creative juices begin to flow. Which is why it's so important to know that the culture that you're familiar with is not the only culture. And within our country, there's so much diversity that it becomes that much juicier when you're able to tap into that, to write a story, to tell a story, to live a story. I know I wanted to say something else, but I'm looking at Sanjay there, and for some reason so I really want to applaud Whistling Woods for having done this, for opening your minds, for opening our minds, and for therefore making sure that the work that comes out of the future generations, or at least not making sure, but at least facilitating the fact that the work that comes out of you people who are sitting here is that much more varied and interesting and exciting. Just make the most of it. There is so much that will be there to experience for all of you in the time that you all are here, and then go explore the world and show us what you see in the world. Thank you. 4 वेदों के बाद एक 5वां वेद आता है, जिसे हम नाट्य शास्त्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, ड्रामा, स्पीच, पेंटिंग्स और सभी किस्म की कलाएं जो हैं उसमें उभारी जाती हैं। तो हमने ये जो अभियान चलाया है कि हमारे स्टूडेंट्स जो व्हिस्लिंग वुड्स के पढ़ें, तो उनमें ये आर्टिस्टिक टेम्परामेंट और आर्टिस्टिक टेस्ट भी बढ़ना चाहिए। खाली किताबों से या नॉलेज से ही सब कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें एक अच्छा आर्टिस्ट भी बनाना है। भले वो कैमरामैन हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, डॉक्टर हो, एक आर्टिस्टिक टेम्परामेंट उसमें बढ़ना चाहिए। और दैट इज़ हाउ ही इज़ गोइंग टू बी अ विनर एंड एक्सेल इन हिज आर्ट, टेक्निक और वट एवर द फॉर्म ही इज़ गोइंग टू डू दैट। सो इस अवसर पर हमने उचित समझा कि क्यों ना एक ऐसे आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट किया जाए जो कि इन कलाओं को एक वाकई ही पूजा समझती हैं और उनकी वर्शिप करती हैं, और वो है हमारी कला की बेटी विद्या बालन, मैं ये कहूँगा। और विद्या जी जो आई हैं, एक मैं बहुत आभारी हूँ, और हमारे स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं कि ये शुरुआत आपके हाथों से हुई कि 5th वेदा की, क्योंकि 5th वेदा एक प्योर आर्ट की बात है, जिसमें कि हमारी जितनी भी सांस्कृतिक कलाएँ हैं, क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल ड्रामा है, क्लासिकल पेंटिंग्स हैं, वो सब का उभार आज से शुरू होगा। ये प्रोग्राम हर वीक चलेगा, और हर वीक में कोई ना कोई बड़े आर्टिस्ट आएंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और आपस में एक दूसरे से डायलॉग और वार्तालाप भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।
आई थिंक एक बड़ा एंटरटेनिंग भी रहेगा उनके लिए, और एक जो आज हम लोग क्लासिकल म्यूज़िक खो चुके हैं या क्लासिकल बातें खो चुके हैं, स्टोरी टेलिंग खो चुके हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आज संजय लीला बंसाली भी आए हैं अपनी मास्टर क्लास लेने के लिए रामलीला की फिल्म लेकर, और पीयूष शाह जी हैं हमारे डायरेक्टर आए हैं, सुखविंदर जी आए हैं, इसलिए उन्होंने एक बहुत अच्छा आपके सामने गाना गाया। और अब तो विजय जी से मैं बात कहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस इस फिफ्थ वेदा के बारे में क्या रहा? एक्चुअली जब मेघना जो सुभाष जी की बेटी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप फिफ्थ वेदा इनॉग्यूरेट करें, तो मैं थोड़ी सी इंट्रिग थी कि ये फिफ्थ वेदा है क्या। फिर हमारी बात हुई और उन्होंने मुझे समझाया कि ये एक कल्चरल हब है जहाँ हम स्टूडेंट्स को कल्चर के हर पहलू से, म्यूज़िक से, डांस से, अलग अलग प्रांतों के कल्चर से एक तरह से वाकिफ़ कराएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एज फिल्म स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली और एज आर्टिस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि हम कल्चर से वाकिफ़ हों, उसको समझें, क्योंकि that enriches our work. Art, after all, is in a sense an interpretation of culture. Of course, it is personality, its beliefs, its thoughts, but it's also an interpretation of culture and your cultural experiences. तो जैसे कॉलेज में मैं जेवियर्स में पढ़ी हूँ, हमारे यहाँ एक इंडियन म्यूज़िक ग्रुप IMG होता है, जहाँ पे कॉन्सर्ट्स रेगुलरली होते हैं, हर महीने होते हैं, फिर साल में एक बड़ा प्रोग्राम होता है। तो क्लासिकल म्यूज़िक से, अब मैं कर्नाटिक म्यूज़िक से वाकिफ़ थी बिकॉज मैं साउथ से हूँ, मतलब आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, पर आई हैव बीन ब्रॉट अप ऑन कर्नाटिक म्यूज़िक।